लर्न व्हाट नॉट टू डू, बिकॉज टू डू के तो बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, नॉट टू डू के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई डायरेक्टर जनरली आपका दोस्त है जिनके साथ आपने काम नहीं किया, नहीं है, नहीं है। आप ओवर एक्सपोज्ड हैं, आई हैव बीन थ्रू दैट। कास्टिंग काउच तो खैर मैं बहुत रेपिटेटिवली बात कर चुकी हूँ, यू नो, वेदर इट इज हियर और इट इज द साउथ, वो भी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है ना। जो नहीं हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। इट इज नॉट कि मैं अपने आप को ये कहानी बता रही हूँ, वो जेन्युइनली मेरे भले के लिए नहीं हो रहा है। Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I am in conversation with someone जिनसे जब भी मैं मिलती हूँ I really enjoy meeting her. ये मेरा personal opinion है और उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। किसी से अगर feisty और fierce वाली feeling आती है और at the same time talented वाली feeling आती है तो वो उनसे है। Joining me in a conversation is none other than Surabhi Chawla. So nice to have you. So nice to be here, Aina. I know we've been wanting to do this for a while, a very long time. And I don't know why, I just wanted to always have a chat with you. That is so sweet. Yeah, really, and thank you so much for such an amazing intro. No, definitely. I'm hoping this chat will be great. How are you feeling? I remember last time हम जब राणा नायडू के टाइम मिले थे, you had an injury. Oh and yeah. Hope things have gotten better तब से. I'm fine. I'm much better. Just at it. Working, you're always, it's constant ना, work in progress. 100%. तो वो किसी ना किसी तरीके से work in progress चलता ही रहता है. But good to see you fit and fine. Yeah, thank you. शुरुआत आपके बचपन से करनी है जहाँ पे you know आप पले पड़े हो चंडीगढ़ में and what a beautiful city and place. अलग ही, मुंबई से काफ़ी अलग. बिल्कुल ही अलग, हर तरीके से अलग एक्चुअली, in terms of ecosystem भी अलग है, habitat भी अलग है, लोग भी अलग हैं, कल्चर भी अलग है, सब कुछ ही अलग है। But I always think that I was not made for that बचपन से for some reason. Slow life is something that. No, I am a homebird. ऐसा नहीं है. I am somebody. I forgot that new word that has come in, no? When you're not an extrovert and when you're not an ambivert. Ambivert, yes, that's right. So I now understand that I'm that. I kind of switch. I flip. So I feel there was a part of me in my growing up years which was half and half. Right. And I could not point a finger at that, and I've not been somebody who can box myself anyway. मैंने कभी ज़्यादा ना उस पर ना सोच विचार किया है और ना उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि मैं कौन हूँ। ये एक सवाल होता है which a lot of people it's very important to know. I feel जैसे पन्ना आप खोलो तो आगे कहानी में क्या है वो जानना मेरे लिए like that for me is that curiosity, that build up, right. What's coming next, what is coming next from me internally, you know, inherently. तो I feel उस वजह से मुझे हमेशा चंडीगढ़ में लगता था कि नहीं, मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती हूँ और मैं बहुत ही पढ़ाकू, स्टडीज़ का, I was a nerd, I was a कीड़ा literally, I was a topper, I was scholar plus an all-rounder. So I was studies, sports, music, drama, all of it. And you were doing all of it. And I was doing all of it. Wow. At the same time. बहुत ही funny से तरीके से मैं यहाँ I landed up here, क्योंकि मेरे numbers और मेरे scores और मेरे marks कहते थे कि मैं जो बनना चाहती हूँ वो बन जाऊँगी, which is a doctor. मेरे माँ बाप जो थे they were always prepared कि ये तो डॉक्टर ही बनेगी. सडनली कम 9th और 10th स्टैंडर्ड उनको लगा ये सडनली क्या हो गया इसको, ये बोल रही है कि इसको ये नहीं करना. तो इज़ दिस बैड कंपनी, इज़ दिस पेयर प्रेशर? एंड आई वाज लाइक नहीं, ये मेरा खुद का डिसीजन है. मुझे नहीं लगता मैं किताबों के बीच में रह सकती हूँ अगले 10 साल तक टू बिकम अ डॉक्टर. वहाँ से मैंने लिया I want to do MBA.
तो वहाँ से मैंने लिया अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट. वहाँ पे चंडीगढ़ में बोर्ड्स आर लाइक कि 10वीं के बाद आपका 11th 12th होता है. इट्स नॉट जूनियर कॉलेज लाइक इट इज़ हियर. तो 11th 12th में आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं. तो मैंने अकाउंट्स लिया. अकाउंट्स में भी I fared really really well. So I was like अच्छा शायद यही रास्ता है मेरा. फिर मैं कॉलेज में गई. कॉलेज में गई. आई वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स. इट्स अ वेरी बहुत फेमस GCG कहते हैं हम लोग. एंड इट वॉज अक्रॉस मेंस कॉलेज MCG. हाँ, तो वो वैसा था. कॉमन सड़क थी. तो मैंने मैस कम्युनिकेशन लिया और मैं उसमें आई वॉज एक्सेलिंग इन दैट. एंड देन सडनली यार इस दौरान मेरा एक बॉयफ्रेंड था, है ना. वो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता था, बहुत तंग करता था. उसके हिसाब से ऐसे ऑन एंड ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ सब उसके हिसाब से ऐसे ऑन ऑफ. तो हमें बैठ गए. एक दिन मैंने कहा भाड़ में जाओ, मुझे जाना है यहाँ से. टीनेज के वक्त आपके लिए वो बहुत टॉर्मेंटिंग होता है बिकॉज इट समवेयर इम्पैक्ट्स योर सेल्फ एस्टीम. द ऑफ के टाइम पे आपको लगता है यार ये तो रिजेक्शन हो गया, राइट. तो वो एक किस्म का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है. बार 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 एक पिंग पोंग बॉल की तरह आप हाँ ना ऐसा चल रहा है. तो एक्चुअली वो मेरा पुश था कि अब तो मैं जा रही हूँ और ख़ुद को ही प्रूव करने के लिए. क्योंकि समवेयर मुझे अब ऐसा लगता है कि वो जो सेल्फ एस्टीम मेरी उस वक्त हिट हुई, आई थिंक मैं खुद ही को प्रूव करने के लिए और उस सेल्फ एस्टीम को एलिवेट करने के लिए या वापस पाने के लिए मुझे खुद को ही कुछ प्रूव करना था. उस धक्के से मैं बॉम्बे आई. ओह माय गॉड. और थैंक गॉड, रियली थैंक गॉड. आई मीन आई ब्लेस हिम. मतलब हम लोग बातचीत नहीं है क्योंकि वो स्कूल टाइम का होता है ना, राइट. बट एंड हैविंग सेड दैट ऑफ कोर्स एक चाह भी थी. देयर वाज अ वांट कि मुझे आई वांट टू बी एन एक्टर एंड मुझे इस लाइन में आना है, जो कि धीरे धीरे डेवलप हुआ. पर किसको देखकर या कौन सी फिल्में देखकर आपको ऐसा लगा? मैं ना मेरी मोस्ट फेवरेट ना हम दिल दे चुके सनम थी फिल्म जब मैं स्कूल में थी. और फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न मुझे डांस का बहुत ज़्यादा शौक था. तो घर में जब भी कोई शादी संगीत होता था ना, तो मेरा सोलो परफॉर्मेंस सेट था, फिक्स्ड था. तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ. वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ. फिर लोगों ने, फैमिली ने, रिलेटिव्स ने बोलना शुरू कर दिया. यू बिगिन टू फील मे बी दिस इज़ माई कॉलिंग. इफ पीपल आर वैलिडेटिंग दैट. तो वहाँ से ऐसा कीड़ा आया. मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं किया. सीधा यहाँ पे आई लैंडेड अप. आई रिमेंबर 13-14 सूटकेसेस के साथ, मम्मी पापा के साथ ट्रेन के. क्योंकि इतने सूटकेसेस थे तो फर्स्ट क्लास बुक करना पड़ा. और मैं बिजनेस फैमिली से हूँ. तो बहुत कंजर्वेटिव थी. जॉइंट फैमिली, बिजनेस फैमिली, कंजर्वेटिव. और मैं सबसे छोटी. और शायद मैं अपनी फैमिली में, शायद नहीं, आई थिंक मैं एक अकेली हूँ, एक सबसे छोटी और ऊपर से लड़की जो ऐसे अपने घर से बाहर निकल के कुछ करी. उस वक्त की बात बता रही हूँ जी. और इसका क्रेडिट मैं अपने ग्रैंडफादर को दूंगी जो वो नहीं है अब. क्योंकि वो वैसा होता है ना, जा सिमरन जा जी अपनी ज़िंदगी. वो वाला कॉन्फिडेंस उन्होंने मेरे डैड को दिया था. क्योंकि माई डैड सेड आई हैव टू आस्क हिम, तो उन्होंने जब ऐसा बोला कि उनको पता नहीं क्यों बट कुछ एक किस्म का ट्रस्ट, भरोसा था, आई वुड से. एंड दैट्स व्हाट लेड मी टू कमिंग हियर. वाओ. आई मीन ऑल्सो बिकॉज ये काइंड रिबेलियस है एक तरह से. मुझे बाल काटने अलाउड नहीं थे. ओह राइट. सिख फैमिली नो. 100%. तो मैं ना जाके वो सैलॉन्स में ना उस वक्त एक प्रोसेस होता था कैंडलिंग. राइट. आई डोंट नो इफ यू नो. या ऑफ कोर्स कैंडलिंग. वो स्प्लिट एंड्स के लिए तो मैंने ना वो कराना शुरू कर दिया. मेरे बाल थे लंबे, वेवी, बड़े. मेरे को बहुत एक्चुअली मैं बहुत शायद कॉन्शियस थी उसकी वजह से भी. एज अ टीनेजर योर हार्मोन्स आर गोइंग एवरीवेयर, प्यूबर्टी हैज हिट, फेस इज चेंजिंग एंड ऑल दैट. अब समझ में आता है ना, विद सो मच एक्सपोजर एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टीनेज इज रियली अबाउट. तो मैं जाती थी उस सैलॉन में
मेरे पास एक काइनेटिक होंडा होता था, मैं इंडिपेंडेंट थी फ्रॉम माई 9th and 10th स्टैंडर्ड ओनली. मैंने आई हैड लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार इन माई 10th स्टैंडर्ड, बट विद इन विसिनिटी के बीच में ही. तो मैं कैंडलिंग कराती थी, मेरी मम्मी आती थी, तूने कुछ करवाया है? तो मैं बोलती थी हाँ, बट बाल तो नहीं काटे मैंने. टेक्निकली है ना, तो वो बाल नहीं कटवाए मैंने. तो ये कुछ वक्त तक चलता रहा. फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आई, तो माई जॉब डिमांडेड दिस, सो आई गॉट इट डन. तो उस वक्त भी ऐसा ही था. मैं कॉलेज में जब थी, यू नो, दैट टाइम द डिस्को पार्टीज एंड द डांस पार्टीज वर जस्ट स्टार्टेड एज समथिंग दैट केम टू आवर कंट्री, आई वुड से. मतलब प्रॉपर जो कि स्कूल टाइम से ही 9th and 10th ग्रेड से यू नो द कल्चर ऑफ डांस पार्टीज वर देयर. तो मम्मी पापा मना कर देते थे, बोलते थे नहीं. तो मैं बोलती थी देखो, ये अब it is a part of our ecosystem and it is a part of my growing up years. अब either I can tell you and do this or I can do it behind your back. Rebel. मैं करूँगी तो आपको बता के करूँगी. मुझे नहीं चाहिए कि मोहल्ले की आंटी से आपको पता लगे कि आपकी बेटी यहाँ थी जी, तो आपके मुंह पे करूँगी. अच्छा, टाइम 12 बजे 11:30 आना है या 12 बजे आना है. अच्छा, आप चेहरा बना सकते हैं मेरा दरवाज़ा खोलने के वक्त, या मुझे खुशी खुशी वेलकम कर सकते हैं. मैं कह के जा रही हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं बता के जा रही हूँ. आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ वन देयर ट्रस्ट, यू नो. सो आई टर्न्ड इनटू अ रिबेल अराउंड माई 9th 10th स्टैंडर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा ना, मुझे तकलीफ होती थी. आई हैव एन एल्डर ब्रदर, वो मेरे से 4 साल बड़ा है, और मुझे उसकी रिस्ट्रिक्शंस देख के खुद ही तकलीफ होती थी. और यू नो एज अ बॉय, एज अ ग्रोइंग अप बॉय, देन यू वुड थिंक कि अच्छा हाँ, ये तो मम्मी पापा से छुपा के कर रहा है, मुझे ये नहीं करना है. कभी कभी आप लाइफ में सीखते हो कि आपको क्या करना है, what to do, and then there are times when you learn what not to do. I think I picked up that very very early. What not to do became my motto. Learn what not to do, because to do के तो बहुत options मिल जाएंगे जी, not to do के options नहीं मिलेंगे. बिल्कुल. So you can say that in those times I was a rebel, and then I think I would say the change, the liberalization in my family, जो liberal हुए वो आपकी वजह से मुझे ऐसा कहीं कहीं लगता है, you know, वो एक flag bearer की ज़रूरत होती है. उसके बाद फिर my whole family became extremely liberal. बाल भी, my brother also, मैं भी, मेरे parents आए after some time when I was doing television at that time. आए, हम लोग साथ में dinner पे गए, champagne भी पी, wine भी पी साथ में. Imagine, and I have to give them the credit ना. It's not easy. आप 50-60 साल के हो, and then उस 50-60 नहीं, but yeah, around 45ish, my parents, you right? need something to evolve. You need something to evolve, but वो चीज़ के लिए आपको खुद भी at that age, you know, as a parent, it takes a lot of gumption to say, okay, you know what, all my conditioning on one side, everything that I was made to believe, put it on one side. Now let's live and change with times for the sake of our children. I think it takes enormous amount of courage and understanding, to be able to do that. 100%. You know, you've lived your life एक तरीके से for literally half, मतलब 40 साल ज़िंदगी के, और उसके बाद आप कहते हो कि you know, हमें अपने बच्चों के लिए change होना है जी. Wow, I mean, I salute parents, and I salute every single parent who is able to do that and who believes this is the right way, कि आप वक्त के साथ बदलें. बिल्कुल. But I would want to ask you, on a scale of 1 to 10, आप अपने आप को कितना ambitious मानती है? What an interesting question. मैं अपने आप को हद से ज़्यादा ambitious मानती हूँ. वो कभी आपके लिए आपके ही दिमाग में annoying नहीं हो जाता है? नहीं, वो annoying इसलिए नहीं होता है क्योंकि there is that ambivert का जो introvert side है ना, वो मुझे खींच लेती है. I'm very old school. At heart I'm very simple. मेरे तौर, मेरे तरीके, मेरी सोच बहुत simple और old school है. मुझे ये Gen Z और millennial, I think ये चीज़
बहुत लोग बोलते होंगे यार ये समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है इज़ अ जेनरिक फीलिंग दैट मोस्ट मिलेनियल्स आई वुड से वुड हैव, राइट, कि यार ये तो हमारे बस का नहीं है, इट्स अ लिटिल अवे फ्रॉम व्हाट वी बिलीव इन और व्हाट वी आर कंफर्टेबल विद, राइट. आई वुड थिंक मैं उससे थोड़ा सा पीछे हूँ. तो वो मेरा जो 50-50 है ना, वो जो फ्लिप एंड स्विच है, लाइक आई लव माई फैमिली लाइफ, आई लव बीइंग होम, आई लव दैट पार्ट ऑफ मी जो कि एक होम मेकर भी है. तो मुझे लगता है मैं कभी कभी मुझे लगता है मैं शायद कंफ्यूज्ड भी रहती हूँ कि मैं हूँ क्या. क्या मैं वो एम्बिशियस, ड्रिवन, सेल्फ एम्पावर्ड, सेल्फ मेड वुमन हूँ, या मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देयर हैव बीन टाइम्स, आई टेल यू ऑनेस्टली, जब मैं इवेंट्स पे जैसे नहीं गई हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है पर्सनली, यू नो, टू पार्टी, और नेटवर्किंग इज़ लाइक अ प्रेशर, स्मॉल टॉक, वो मुझसे नहीं होता. मुझसे मीनिंगफुल आप 10 घंटे बैठो मेरे साथ बात करो, हाँ, है ना, और 1-on-1 में बहुत मज़ा आता है. हाँ. लेकिन हमारी इंडस्ट्री जो कि नाम से जिस जानी जाती है शो बिज, वो शो के नीचे ना ब्रांचेस में ना बहुत सारी ब्रांचेस हैं. वो आपका मिलना भी शो है, आप क्यों मिल रहे हैं वो भी शो है, ट्रांजैक्शनल है, रियल रिलेशनशिप्स बहुत फार फ्रॉम फ्यू है. वो मुझे अनकंफर्टेबल करता है. राइट. आई फाइंड दैट वेरी अनकंफर्टेबल. आपने जिनके साथ काम किया है ज़रूरी नहीं है, आप उनमें से कुछ सिलेक्ट फ्यू के साथ यू विल फॉर्म बॉन्ड्स ऑफ, यू नो, जेन्युइन, जिसे कहते हैं कि एक यू नो, एक ह्यूमन लेवल पे आपका कुछ कनेक्शन हुआ, चाहे वो आपका डायरेक्टर, को एक्टर, को स्टार है. बट आई फील उसके अलावा इट इज़ नॉट इनकम्बेंट कि अगर आपने किसी के साथ काम किया है तो उसके साथ आपका एक पर्सनल रैपो है ही. बिल्कुल. लेकिन यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपने किसी के साथ काम किया तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड आप कहते हो, और मुझसे वो बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि हर एक इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड है. ये थोड़ा मुझे हार्ड टू बिलीव लगता है, और मे बी आई कुड बी रॉन्ग, यू नो, आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स, पीपल आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, पर मैं अपने आप को कभी कभी कन्फ्यूज्ड पाती हूँ. हैव यू मेड रिलेशंस इस इंडस्ट्री में काम करते करते जो आप बोल सकते हो? मेरे जितने भी ऑल माई डायरेक्टर्स और अ लॉट ऑफ माई को एक्टर्स, आई वुड से, they understand that we are in an industry where when you are on a set आप 30 दिन एक दूसरे के साथ हैं, या आप कुछ महीनों तक रिकरिंगली एक दूसरे को मिल रहे हैं. लेकिन ऐसा भी होगा कि आप 6 महीने तक बात ना करें. हाँ, है ना. तो मेरा उनके साथ इक्वेशन है, या उनका मेरे साथ इक्वेशन है, जो हम लोग आपस में ये बात समझते हैं कि इट्स ओके इफ़ वी डोंट स्पीक एंड इफ़ वी आर नॉट इन टच फॉर मंथ्स टुगेदर, बट व्हेन वी डू मीट एंड वी डू गेट इन टच, वील टेक ऑफ फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड और वेयर वी लेफ्ट. तो मेरी इंडस्ट्री में वो दोस्तियां हैं, और उन्हीं के साथ है जिनके साथ मैंने वक्त बिताया है, सेट पे बिताया है, काम किया है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई डायरेक्टर जनरली आपका दोस्त है जिनके साथ आपने काम नहीं किया, नहीं है. नहीं है. शायद मैं वैसी हूँ कि मुझे वक्त चाहिए आपके साथ टू कनेक्ट विद यू एट अ रियली ह्यूमन एंड अ वेरी जेन्युइन लेवल. 100%. तो इसलिए मैं बोलती हूँ मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ. मेरे से या a lot of things that you need to do here I've probably not been able to do because of my inherent personality. Right. But वो inherent personality क्या है वो मुझे भी नहीं पता है. And I feel it's not necessary to know. You go with the flow. You turn that page of the book, going along, and discover yourself and explore yourself. And I feel when I let go of trying to find out, no, कि मैं कौन हूँ, not feeling conscious about ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, है ना. I think that is the time when I started doing my best work. But don't you feel आपका
थोड़ा ओल्ड स्कूल होना या पुटिंग योर सेल्फ अ लिटिल भी है, काइंड ऑफ इस इंडस्ट्री में बैकफायर हुआ है आपको? बिकॉज जब हम देखते हैं इन एवरी सेंस कि अरे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या आप किसी इंपॉर्टेंट इंसान के फेवरेट बनते रह गए, या आपको शायद एक दरवाज़ा खुल सकता था पर वो इंसान ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड था जो आपका कंटेम्प्रेरी था तो उनको मिल गया. डू यू फील कि जो एक्स्ट्रा करते हैं उनको एक्स्ट्रा थोड़ा मिल भी जाता है? हाँ, वो फैक्ट है. वो फैक्ट है. जो वो चुभता है फिर? नहीं, वो चुभता नहीं है मुझे वो नहीं चुभता. हाँ, जहाँ पे हम फेवरेटिज्म की बात करते हैं वहाँ पे वो अनफेयरनेस लगती ही है ना आपको, क्योंकि ये शायद एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोग्रेस का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. आप किसी भी फील्ड में देखेंगे, सबसे पहले रेज्यूमे में आएगा आपने क्या पढ़ाई करी, फिर आएगा आपने जॉब अपना फर्स्ट लेवल बेस लेवल कहाँ से स्टार्ट किया जी, फिर एक अनसेड उस लेवल के नेक्स्ट लेवल की एक प्रमोशन होती है, वो आपको मिलेगी, फिर आपका पे पैकेज बढ़ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको पता है अच्छा आई एम इन दिस डिपार्टमेंट, मुझे इसी डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फाइनेंस हो या कहीं भी हो, नेक्स्ट लेवल इज़ दिस, मैं यहाँ अच्छा करूँगी तो नेक्स्ट लेवल इज़ दिस. और आई डोंट say that what exists in the industry does not exist in the corporate world. That's not what I mean. Especially for women. Yeah. I'm aware of that also. ये favoritism और ये सब वहाँ भी चलता है. But at least आपके पास एक structure तो है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. Which is what we were discussing, right? Yeah. तो आप ना खो जाते हो उसमें कभी कभी कि अच्छा यहाँ से जाना कहाँ है, यहाँ का next होता क्या है? True. You know? सो कमिंग बैक टू, हाँ अनफेयर लगता है, लेकिन मेरे लिए मेरा पीस भी बहुत ज़रूरी है जी. कहीं कहीं तकलीफ भी होती है दैट इन अ लॉट ऑफ वेज यू मिस आउट ऑन सम थिंग्स, क्योंकि आप जिनके साथ बैठ रहे हैं वो उसी लॉबी में काम चलता रहेगा, तो आपकी टैलेंट का कोई मतलब नहीं है. मतलब किस चीज़ का है ज़्यादा, कि किसके साथ ज़्यादा बातचीत होगी या किसके साथ वो लॉबी में ये गिन के इतने लोग हैं हम इन्हीं के साथ काम वो करते आज हैं. भी हो रहा है. वो ऑफ कोर्स हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है. you would know that. Yeah, you and I both would know that. In the casting phase, I feel like maybe it might like, no, it has changed a lot. No, emphasizing 100%, so much on talent 100%. And I mean the last I think 4 or 5 projects that I probably have done, I got a glimpse of that. The change. I got a glimpse of the change. I got a glimpse of the change in the men that I'm working with. I got a glimpse of there are people to whom the talent matters. ऐसा नहीं है they don't exist. umpteen number of people, makers who will say भाई हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Gone are those days जहाँ पे बोला जाता था आप टेलीविजन से हैं, आप ओवर एक्सपोज्ड हैं. I've been through that. Yeah. कास्टिंग काउच तो खैर मैं बहुत रेपिटेटिवली बात कर चुकी हूँ, यू नो, वेदर इट इज़ हियर और इट इज़ द साउथ. वो भी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है ना. फिर आई कांट से कि हाँ सिर्फ मेरे ही अंदर you know, my personality has not allowed me to grab those opportunities. For instance, I'm telling you here also, the first film Before Ugly that I was meant to do, in that particular film also, मैं वहाँ तक पहुँच चुकी थी जहाँ पे रीडिंग्स हो रही थी, कॉस्ट्यूम, रेकी, ये सब लॉक्ड, कन्फर्म, सब कुछ लॉक हो गया था. And suddenly I found out that the director said, I'm not feeling it. I don't know why. After everything. और रीडिंग में प्रॉपर रीडिंग्स हुई थी, बाकायदा को-एक्टर्स के साथ रीडिंग्स हुई थी, और रीडिंग्स में बहुत ऐसे कोलैबोरेटिव भी था एंड रिस्पॉन्सिव भी था एंड immense amount of appreciation also. But then suddenly one fine day and then later I got to know what actually happened, and I got to know from the producer himself. Oh my God. Yeah. And favoritism. हाँ. या जो 10 बार मिल चुका है, जिनके साथ कॉफ़ी हो गई है या ये हो गया या वो हो गया, उनको मिल गया था. उनको मिल गया, and I was made to exit. वो फिल्म चली थी? नहीं. वो एक अलग किस्सा है, कहानी है मेरी
मेरे जिंदगी में जो चीज़ नहीं होती है ना, पहले मैं बहुत आई यूज्ड टू गेट वेरी वेरी अफेक्टेड बाय इट, एंड आई वुड एक्चुअली इक्वेट माय ओन सेल्फ वर्थ with the rejection, which is a I feel that is a common consequence, a given consequence when you're starting in your early days. When you feel rejected, it straight away comes to self doubt, it straight away comes to self worth. आप अपने टैलेंट को भी, अपनी स्किल को भी, हर चीज़ को डाउट करते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. देन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आई रियलाइज जो चीज़ वर्कआउट मेरे लिए नहीं हुई, either it did not do well, and I did not, it's not like I wish for it to not do well, I'm not that person. Yeah. But eventually that taught me, या तो वो चीज़ कभी it didn't fare well at all, or it never saw the light of day. ये मेरा record है. ये मेरा record है. I mean, I can make a list and tell you. So it happened, and the result has been the same. So एक इनहेरेंट ना फेथ आ गया कि जो नहीं हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए नहीं हो रहा है. इट इज़ नॉट कि मैं अपने आप को ये कहानी बता रही हूँ, वो जेन्युइनली मेरे भले के लिए नहीं हो रहा है. एंड दैट विद द सेम एक्सपीरियंस हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन मेड मी रियलाइज कि ओके, नॉट मेंट फॉर मी. And you accepted and you realize the next time when a few years back तक जब मुझे ये समझ आया, तो फिर मेरा रिजेक्शन हो या एक्सेप्टेंस हो, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बिकॉज आई वुड नॉट लेट इट इन्वेड द डोर ऑफ माई सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ डाउट. आई जस्ट सेड ये बस ये गार्ड है मेरा, यू नो, लाइक अपनी शील्ड होती है ना, सुपर वुमन वंडर गर्ल शील्ड होती है, वो शील्ड के थ्रू आप पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते हैं. आई थिंक वो चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आ ही जाती है कहीं ना कहीं. वो एक्सपीरियंस के साथ आती है ना, व्हाट वी वर डिस्कसिंग बिफोर, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस, दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ, एंड आई थिंक I feel it's not about your experience in doing what you're doing, it's also the practice of being 100%, giving more than 100% every time you're doing your job. That gives you the self belief कि कुछ भी insurmountable नहीं है. वो आप प्रैक्टिस में इतना आपका रोलिंग प्रैक्टिस में हो गया है ना कि आपको अपना सेल्फ बिलीफ भी आपने होन कर लिया है उस प्रैक्टिस के साथ. यू फील कॉन्फिडेंट, लाइक आई एम ardent cricket lover. तो when I hear sportsmen talk about practicing and saying when you're, for example, for a batsman ना, जब वो क्रीज पे खड़ा है तो टेक्निक एक चीज़ है, माइंडसेट एक चीज़ है, राइट? बट इस दोनों के पीछे क्या है? कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कहाँ से? आपने अपना होमवर्क किया है नेट्स में, आपने प्रैक्टिस करी है तो वो कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस है तो हेजिटेशन नहीं है. हेजिटेशन नहीं है तो जो आपने प्रैक्टिस किया है, या जैसे आपको कवर ड्राइव मारनी चाहिए या कैसे आपको स्ट्रेट ड्राइव मारनी चाहिए, तो वो टेक्निक ऑटोमेटिकली होन हो जाती है जी. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील, सी सबकी ना अपनी अपनी जर्नी होती है. मेरी क्या कॉलिंग है मुझे नहीं पता. आई एम जस्ट फ्लोइंग लाइक वाटर, गोइंग विद द फ्लो, फ्लोइंग लाइक वाटर. व्हिच एक्चुअली मेक्स मी थिंक कि आपको लगता है कि स्पेशली यू नो व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर यू, एक पॉइंट सबके लाइफ में आता है, आपको लगता है कि जो प्लान किया था या जो हो रहा है उस हिसाब से लाइफ नहीं चल रही है, पर मेरे आजू बाजू के लोग जो हैं उनके लिए चीज़ें वर्कआउट कर रही है. उस वक्त अपने आप के साथ डील करना कितना मुश्किल था, और इस रियलिटी से डील करना? I think that hit me hard at some point in my life, around 2015-16, when I went through a bit of depression because of that. Yeah, you did mention this. Yeah. On record. It hit me very, very hard because, you know, ऐसा होता है कि अच्छा 2 + 2 4 है, 2 + 2 3 तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ भी कर लो. हाँ बिल्कुल. तो अब कुछ काम किया, उसने नंबर्स भी किए, काम सराहा भी गया,
अप्रिसिएशन भी मिला, तो आपको लगता है आई हैव अराइव्ड। तो आप उसके अराइव्ड थॉट के आसपास यू build a whole world of your own where you're in a bubble saying now things will work out or things will happen yeah differently yeah. and अब तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और जब वो नहीं होती हैं तो वहाँ से आप नीचे बूम जी गिरते हैं। वो फर्स्ट टाइम था मेरा गिरने का, तो मैं हैंडल नहीं कर पाई। Fair. And when I could not handle that, it took me 2 years, and that's the time when I got married. Okay. And that depression hit me a couple of years, like the next year basically. So some people thought I'm really unhappy in my marriage, and that was far from the reality. The truth and the reality. It had got nothing to do with my personal life. Yeah. And it had everything to do with my professional life. And at that point, my husband actually helped me to understand one thing, that work is a part of life. Nahi to I was obsessed. I relate. You're just obsessed with work and with climbing a ladder. Yeah. जो आपने खुद अपने दिमाग में बनाई है, self-made, and you just obsess over it. ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अच्छा ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। आप उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी ही आपके काम से बन रही है। जी। Thank God for me having gone through that depression. Why do you say that? Because it just equipped me. It truly equipped me. कि इसके बाद ये होना इस इंडस्ट्री में ज़रूरी नहीं है, 2+2 4 नहीं है, 2+2 1 भी हो सकता है इस इंडस्ट्री में। जी, है ना। आपका ब्लॉकबस्टर वक्त आ जाए या आपने कुछ आपका योर प्रोजेक्ट हैज़ डन फिनोमिनली वेल डज नॉट लीड टू द नेक्स्ट वन बीइंग बिगर बेटर और फॉर यू टू इवन हैव अ नेक्स्ट वन। And simultaneously to understand that you can't get fixated. The more, it is like that sand. जितना आप उसे कस के टाइट पकड़ेंगे ना उतनी ही वो खुलती जाएगी। तो ये समझने में बहुत वक्त लगा मुझे। और जैसे ही मैंने ऐसे रेन्स छोड़े, things started working out. That's I think that's how the universe That's how the universe आज ही मैं अभी रास्ते में आ रही थी, I was listening to somebody's podcast and it was about okay, नहीं हो रहा, screw it. I understand. While having said that, some people don't have the privilege to say screw it because there are bills to 100% pay. It's not easy. But in that time, to try to look within, to try to keep working and keep that, वो जो होप की जो फ्लेम है उसको जलते रहने देना, कि टू सेपरेट कि यार ये जो बाहर हो रहा है ना, इसका मेरे सेल्फ वर्थ और मेरी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। ज़ीरो लेना देना है। वो सेग्रीगेशन करते करते बहुत वक्त लगा मुझे कि ये सेपरेट है। वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, वर्क इज़ नॉट माई लाइफ। आई लव माई वर्क। I am extremely passionate about anything that I do. It's not just acting. It's all my other creativity, whether it is, doing my home interiors. I'm passionate about it. You know, not having somebody sit on my head कि हाँ दे दिया किसी के हाथ में सौंप दिया। नहीं, I'm passionate. It's my space. I'm passionate about doing decor. At my own parties and being very hands-on with it. I'm passionate about music. I'm passionate about singing. I didn't pursue it as a different thing. But I'm passionate about these things. I'm passionate about sports. Yeah. There's so many other things. There's so many other things, na? Yeah, 100%. It's not one. क्योंकि ये आज है और एक वक्त के बाद किसी के पास नहीं रहने वाला है. होने ही नहीं वाला है. तो I'll tell you something that very recently happened. I had such a wonderful run, na? Rather, I was having such a wonderful run this year. I'm seeing you so often. I know. It's a good thing. I still don't know where it's going to lead me to. But enjoy what's happening. But I'm just saying. Now, to live with that expectation, na? Sorry, Hindi. हाँ, कि उस expectation के साथ रहना कि अब क्या
अभी कितने कॉल आए, किस किस के कॉल आए. तो एक दिन मुझे बैठे बैठे ये थॉट आया, कितने कॉल आए, किस किस के कॉल आए, अच्छा इतना, इसके, कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम. इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम टू माई सेल्फ बिलीफ. ना मेरी सेल्फ वर्थ को पे हावी हो रहा है और ना मेरी आइडेंटिटी पे हावी हो रहा है. Some part of me feels very secure, right. And the other part of me is very driven to achieve more. Right. Absolutely. Do you struggle to be grateful? No. At times? No. कि कभी-कभी what is missing के चक्कर में आप भूल जाते हो कि क्या पाया है? नहीं. वो नहीं होता. अब तो पहले से बहुत ज़्यादा याद रहता है. पहले होता था? Of course पहले होता था, क्योंकि आप आप 19 साल के और आप बॉम्बे आ गए. You're just 19. उस वक्त ये सब चीज़ की कहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी को भी नहीं होती है, किसी को नहीं होती है. वो तो वक्त, एक्सपीरियंस, योर प्राइम, योर रिलेशनशिप्स, योर डाउन्स, योर अप्स, हाउ यू हैंडल्ड बोथ, ये दोनों चीज़ें जो है आपको वो सिखाता है. कि पहले आप जाते हो तो जो नहीं है ना उसी पे फोकस चलता है, rather than जो हुआ, जो है, जो किया. So when you look back, I think वो looking back में आज किसने तो I think Rana's wife Mihika had put something really beautiful on her post today, which said when you look back to only see how far you have come, how far you have grown, not for anything else, not for regrets. Okay. She just had a very beautiful one single एक line थी कि look back only to see your own growth. Yeah. Nothing else. Nothing else. तो वो तो देखना ज़रूरी है ना. अब आप बोलेंगे अच्छा इसका मतलब ये है कि उसी को देख के खुश हो जाओ. नहीं, किसने बोला? I am as driven as I was when I was 19. Rather I am more driven today. It's just that वो visually, visibly anxiety और desperation नहीं है. And thankfully times have changed. जहाँ पे हम shelf life की आज बात ही नहीं कर सकते हैं और ना करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए. जी. I don't think abhi that concept exists anymore. That's what I'm saying. And see that's how far lovely. we've come. Yeah. See how far we've come, right? It's amazing. But I want to take you back to your television days जब आप TV serials करते थे. I mean, what was that phase like for you अपनी ज़िंदगी में? और मैंने काफ़ी सुना है कि टीवी में और टेलीविजन में जब वहाँ तब एक्टर्स काम करते थे तब वर्किंग आवर्स बहुत ही अनरियलिस्टिक होते थे. सेट पे एम्बुलेंस होता था. आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नो. That's true. A lot of times होता था. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत ही टफ ग्राइंड होती थी. राइट. आई एम नॉट अवेयर आज की डेट में टेलीविजन में वो ग्राइंड अभी भी वैसे ही है कि देयर आर सर्टन सेट नॉर्म्स कि हम इतने घंटे काम करेंगे उतने घंटे. उस वक्त तो आपको लगता था अगर आपने इतने घंटे काम नहीं किया तो आपको बाहर निकाल देंगे और रिप्लेस कर देंगे. जी. तो आप वो कांस्टेंट फियर में है जिसमें आप सब कुछ भूल जाते हैं और आपको सिर्फ यही याद रहता है कि आपको ये काम करना ही है. सब कुछ दाव पे है नहीं तो. You know, you're paying rent of your house, you're paying your bills. Yeah. You know, खाना खा रहे हो, पी रहे हो, then you have to go out, spend time, do this, do that. You have to make purchases. I mean, the list is unending, ना? Absolutely. तो 12 घंटे की तो शिफ्ट होती थी. उसमें फिर कभी कभी होता था कि आप लेट हो गए तो 13वां घंटा आ गया. 13वां घंटा कभी कभी पेड होता था, कभी कभी नहीं होता था. फिर तो उसकी फाइट मारनी पड़ती थी. कभी कभी ऐसे ट्रैक्स होते थे या स्टोरी में किसी की शादी है या कुछ है. आई वर्क 36 आवर्स विदाउट गोइंग होम, बीइंग ऑन अ सेट. आंखें दिमाग सब शट डाउन पे बट फिर भी खुले रख रहे हैं. दैट वाज अ वेरी वेरी हार्ड. तब रियलाइज होता था कि मैं इतना या फिर यू आर गोइंग विद द फ्लो या फिर यू रियलाइजिंग दैट यार यू आर स्लॉगिंग योरसेल्फ बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव टोल्ड मी कि उनको पता ही नहीं चलता था इतना काम कर रहे हैं क्योंकि इतना नॉर्मलाइज था तब. नॉर्मलाइज तो था. आई हैव टू अग्री विद दैट. इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मलाइज्ड. बट आई स्टिल गिव दैट स्लॉग
absolute credit. Absolutely. You know, when you start the hard way ना, फिर सब कुछ everything feels like a piece of cake. Easy. When I say piece of cake, I don't really mean piece of cake, but फिर ऐसा हो गया ना, आपने 10 से स्टार्ट कर लिया, तो अब 5 और 6 क्या है ना? आपकी ट्रेनिंग, आपकी कंडीशनिंग वैसी हो जाती है. It's like you've been under hard task masters ना. Yeah. तो उसके बाद कोई लीनियंट टीचर आ जाए तो लगता है अरे यार ये तो हो जाएगा you know. जब आपको ट्रांजिट करना था फ्रॉम टेलीविजन टू फिल्म्स, और आपने काफ़ी कहा है कि बहुत कास्टिंग काउच फेस किया है एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, कभी लगा कि यार नहीं है, गिव अप कर देते हैं, इस बिकॉज लुक व्हाट आई एम फेसिंग, लाइक इट्स रिडिकुलस? गिव अप तो नहीं लगा. लगा चलते रहते हैं, शायद कोई मिल जाएगा जो इस चैनल के थ्रू, ऐसा लगा. That's nice. But yeah, ऐसा नहीं लगा कि गिव अप कर देते. फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी. I mean, it was so annoying. It was so frustrating. Did casting couch make you थोड़ा fearful? कि यार No, expectant. Oh God. And prepared. कि आप मुझे पता क्या जवाब देना है. हाँ, मुझे prepared in the sense कि हाँ ये तो ऐसा होने वाला है, तो you're cautious. Now you become cautious because आप already उस चीज़ को expect कर रहे हैं, और जब आप उस चीज़ को expect कर रहे हैं तो आपको लगता है अच्छा हाँ अगर ऐसा होगा ना तो ऐसा जवाब दे देंगे या ऐसा कर लेंगे. और जब कोई ऐसा you know वो कमल का फूल कीचड़ में से एक मीटिंग होती थी जहाँ पे नहीं होता था, you used to feel very good. Wow. ऐसा भी हो रहा है, you know. So I think I was very happy when this whole casting scenario took birth. Yeah. You know, especially here in India. पहले कास्टिंग ऐसे नहीं होती थी, बाहर होती थी ऐसे हमेशा, यहाँ नहीं होती थी. तो this whole casting as an industry that is like a mini sister industry within our industry, I think it's amazing. But I think it's become so much better. 100%. Now. It's also Me Too हुआ, सब हुआ ना. Everything is social media. I think everything is a factor. People have a voice. People have a platform. कोई आज किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा. हाँ, और वो न्यूज़ बन सकता है. It can be scintillating news. Absolutely. है ना, ऐसा कोई. And women today are very fearless. Yeah. I think we're all very fearless. अगर किसी की बैंड बजानी है तो बजा देंगे. True. कोई fear नहीं है. ना बोलने में कभी आप कतराते थे? कभी भी नहीं. How has that come? Never. That doesn't come naturally to people. Never. ना बोलने के बाद regret होता था कि oh no. हाँ. शायद. But not to what is also subjective ना. हाँ, मतलब मान लो कि आपको किसी को ऑफेंड नहीं करना है, क्योंकि आपको काम भी करना है उनके साथ, पर आपको शायद स्क्रिप्ट पसंद नहीं आया या फिर काम पसंद नहीं आया, पर आपको, या फिर हर कोई भी चीज़ के लिए, मतलब मैंने काफ़ी सुना है कि ना बोलना मुश्किल हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी बार. I would correct myself initially. Initially ना बोलना, initially आप किसी चीज़ से convinced नहीं है स्क्रिप्ट में या अदरवाइज, तो आप ना नहीं बोलेंगे, आप अपना ओपिनियन नहीं देंगे, आप सजेशन नहीं देंगे कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर है, उसको मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है. आई थिंक फॉर दैट इनिशियली. उसके बाद ऐसा लगा आई गॉट नथिंग टू लूज. सो देन कम आउट, बी यू एंड बी फियरलेस. सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आई वो? डिटैचमेंट से. राइट. आई टोल्ड यू राइट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई वो डिप्रेशन वाले फेज से. एक्चुअली आप अपनी आइडेंटिटी को इस फील्ड और इस इंडस्ट्री और अपने काम के साथ अटैच ना करने से, ये डिस्पैरिटी करने से कि मैं जो भी हूँ फील्ड में, जो भी वैलिडेशन है ये है वो मेरे घर के बाहर है. मैं घर पे वो ही एक चंडीगढ़ की पंजाबी सिंपल कुड़ी हूँ, और मैं, एंड थैंकफुली आई थिंक बीइंग मैरिड टू समबडी हु इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री ना, वो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखता है, क्योंकि आप अपने ही बबल में और अपनी दुनिया में नहीं रहते हैं. आप रियलिटी के साथ हमेशा इन टच में रहते हैं. तो आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन वो था टू मैरी माई हस्बैंड. I know that's and he's so grounded and he's so grounding and he's so real. कोई मतलब नहीं है तुम कौन, तुम जो हो घर के बाहर होगे.
नो हाँ. तो कुछ अननेसेसरी चढ़ाना नहीं, और ना अननेसेसरली क्रिटिसाइज करना, ना डाउनफॉल्स को या लो टाइम्स को बहुत इम्पोर्टेंस उस तरीके से देना. ऑलवेज स्टैंडिंग बाय मी, ऑलवेज बीइंग माय लिसनिंग ईयर, बट नेवर एवर अननेसेसरली पुटिंग मी अप. चढ़ाने वाली कोई आज तक कभी कुछ नहीं किया है. तो मैं ना कंप्लीटली अब तो ऑफ कोर्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस यू बिकम लाइक दैट, लेकिन आई थिंक ही इज़ अ वेरी माई पर्सनल वर्ल्ड इज़ अ very 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 major grounding factor for me. No, that's lovely and I feel like an actor kind of needs that कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में. अरे मुझे तो ये लगने लग गया है आईना that we as actors हम खुद को ही बहुत चढ़ा के रखते हैं यार कि हम एक्टर हैं और हमारे फैंस हैं. मुझे ना अभी आइडिया वॉप लगने लगा है, क्योंकि मुझे पर्सनली जेन्युइनली ऐसा लगता है हर इंसान, आप दुनिया में किसी और इंसान जो काम पे जाता है, जो गधा मजदूरी भी करता है, जो मजदूरी भी करता है, जो लेबर वर्क भी करता है, जो ऑफिस भी जाता है, जो ट्रेन में भी ट्रैवल करता है, जिसको अपने बिल्स भी पे करने हैं, जिसके पास ये लग्जरी और privilege of stardom and the perks that you get that come with it, और ये VIP ट्रीटमेंट्स वगैरह नहीं है ना, वो आदमी आपसे ज़्यादा मेहनत करता है. तो ऐसा तो आपने क्या कर दिया कि आप एक्टर हो या आप स्टार हो. सो फॉर मी दिस अवेकनिंग आई वुड से हैज़ रियली रियली चेंज्ड द वे आई थिंक. पहले ना मुझे ऐसा होता था, I used to have airs about myself. I don't mean to say that how do I put it? I'm very well aware कि मैं अपने घर से जब बाहर निकलती हूँ या जब मैं सेट पे जाती हूँ, मैं काम में जाती हूँ अपने फैंस के साथ, मैं क्या हूँ. लेकिन वो इतना सीरियसली नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो बहुत ही फिकल है. True. और फिकल है तो मतलब of course a lot of people say that you know about fame or about stardom की फिकल है, बट मैं genuinely सोचती हूँ हमको अपने आप को just because we are in the industry, हम लोग किसी और planet से नहीं आए हैं जी. तो it is just a mere job that we are doing. Everything that comes, all the frills and the bells and the whistles is just bonus. True. तो ये मुझे अपने आप को उस पद पे रखना कि या उस थ्रोन पे बिठाना कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक स्टार हूँ और मैं ये काम करती हूँ और मेरी फैन फॉलोइंग है और मेरे पास फेम है, ये मुझे अब वक्त लगने लग गया है. बिकॉज आई फील लाइक आई सेड, आई फील हर इंसान मेहनत करता है. हाँ बिल्कुल. तो ऐसी हमने क्या मेहनत कर ली यार. एसी में बैठते हैं, 5 मिनट धूप में बैठते नहीं हैं, 5 मिनट का शॉट देते हैं, 50 मिनट एसी में बैठते हैं. नहीं, मेहनत तो आई फील एक्टर्स ऑब्वियसली, बट आई नो व्हाट यू मीन. आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम व्हाट वी, आई एम आल्सो एन एक्टर, राइट, व्हाट वी डू एज एन एक्टर. या बट आई एम सेइंग क्या कोई और आपसे कम मेहनत कर रहा है? बिल्कुल नहीं. बस मेरा बस इतना ही पॉइंट है. नहीं, बिल्कुल नहीं. दैट्स ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर. यू नो व्हाट्स लवली इज ऑल्सो, जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली काफ़ी ग्राउंडिंग है, टू हैव अ पार्टनर जो इंडस्ट्री से नहीं है, उनके लिए या आपको उनको समझाने के लिए कितना मुश्किल था कि यू नो ये चीज़ें होती है, देयर वोंट बी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, देयर विल बी प्रोबेबली इंटिमेट सीन्स, देयर विल बी थिंग्स दैट प्रोबेबली यू नो आई हैव टू डू फॉर माई आर्ट एंड द टाइम आई विल हैव टू गिव फॉर माई करियर, टू जस्ट सॉर्ट ऑफ यू नो ऑल्सो बी लाइक there are things, it's not going to be a normal जो आप एक पत्नी से expect करते हो, like a normal man who's not a part of this industry would expect. उसमें वो understanding कैसे आई? We've never had a conversation about this. Yeah, that's lovely. There was so much understanding of my job and what comes with the job. We've never had a conversation about this. हमारी ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है. It was very matter of fact. There has never been a discussion कि मेरे job में ऐसा है वैसा है.
it was a matlab, we fell in love for who we are. He was starting up, and my work was going on, and there was never that conversation. I don't remember ever having to explain anything to him. In fact, I'll tell you a very beautiful incident. I think part of my security also comes from that. In various ways. In ways of not just modeling to show my daughter, not just in terms of how regulated मुझे रहना पड़ता है, in the sense of, you know, children catch energy और आपका ही हिस्सा है ना, तो वो that science also proves कि आपके और आपके बच्चे के साथ ना जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कनेक्टेड है, लिटरली. एट क्वांटम फिजिक्स ऑल्सो सेज दिस. तो ये सब कनेक्टेड है. तो इट इज़ वो, आई थिंक वो होता है ना कि आप बोलते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, पहले आप फेक करते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, तो आप कॉन्फिडेंट बन जाते हैं. यू एक्ट कॉन्फिडेंट फर्स्ट, राइट? तो आई थिंक इन ट्राइंग टू मॉडल फॉर हर, चाहे वो फियरलेसनेस हो, चाहे वो खुद की रेगुलेशन हो, चाहे वो अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे वो करेजियस होना हो, चाहे वो ओपिनियनेटेड होना हो, वो हर चीज़ में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है कि मैं खुद हूँ तो सब है, राइट? और मैं खुद क्या हूँ, मैं ये सब हूँ. और ये खाली बोलने के लिए, लिप सर्विस देने के लिए नहीं. आई हैव टू वॉक द टॉक इफ आई वॉन्ट माई डॉटर to be that way. Yeah. You know, so I have to be that, and not just in lip service. Really be that. Yeah. I think most part of my security and my fearlessness, and me speaking up and calling us. I was always like that. I was never diplomatic. मतलब my husband would tell me कि तू पागल ही है, तेरे को डिप्लोमेसी ही नहीं आती है. Yeah. मैं कुछ नहीं कर सकती. Yeah. You know, I'm very happy. But पहले I was not happy with being that way. I would try to cater to people. हाँ, this is where I'm talking about, जो हम पहले बात कर रहे थे. I would try to cater to people कि यार यहाँ तो नहीं कर सकते, यहाँ नहीं बोलना चाहिए, आगे ये ना ये कर रहा है तो शायद उसमें चांस खत्म हो जाए, ऐसा. वो कैलकुलेशन, वो पीपल प्लीजिंग नहीं आता था नेचुरली. And I don't want my daughter to be people pleasing at all. Yeah. You know, तो I think वो वहीं से आया है कि I need to walk the talk. Because kids catch it when you're faking it. Kids are the first, they're so intuitive कि वो पकड़ में आ जाता है कि हाँ सिर्फ बोलने के लिए बोल रही है, अंदर तूफान चल रहा है. Yeah. You know, तो ये a big amount of the security has come after becoming a mother. Absolutely. Yeah. And then having a daughter. Yeah. To have to think for a daughter. Yeah. You know, a lot of it. And then also, it was a world, and then came a small little world within that world. Yeah. Which stamped the idea of, I have a lot of identities and I play a lot of roles. Yeah. My job is to play every single role to the utmost capability and capacity of mine, and I want to give my 100% everywhere. When I'm working, मैं पूरा दिन फ़ोन नहीं करती हूँ. My daughter, वो अपनी दादी के साथ होती है, वो नैनीज़ के साथ होती है, वो घर पे होती है, वो स्कूल जाती है. उसको पता है ये काम पे हैं और Don't disturb mama. मेरे जहन में भी नहीं आता. Now you could call me, that's the mother I am. मैं जब काम पे हूँ तो मैं 100% काम पे हूँ. जब मैं when I'm playing the role of a mother, my phone is on silent. जिसको urgently करना है वो message छोड़ देगा, I will call them back. That's such a lovely balance. Yeah. So the balance has come to me because of my depression. Right. I had zero balance in my life. It has come to me after getting married. After understanding how life is a puzzle with many pieces. It's not that one piece. Yeah, so it's obviously gone there and then it's gone there. Yeah. But you know, coming back to your work, ऐसा हुआ है कि you know there are certain places after, like you said, there was a point जब you had that air that I'm an actor and you know I have fans. But फिर भी ऐसा होता है कि आप जब एक वर्क प्लेस पे जाते हो, there are your co-stars or you will meet people who will make you still feel little and small about yourself.
और थैंकफुली नहीं होता, नहीं होता है, नहीं होता। और या तो आप अगर किसी को मिलते हो जो आपसे भी ज़्यादा सपोजिडली पॉपुलर है, तो हैव यू एवर फेल्ट कि यार मुझे छोटा लग रहा है इन दिस रूम, या फिर आई एम नॉट फीलिंग एज वेलकम? पहले लगता था, पहले ये जो भी बातें हैं ना ये सब पहले लगती थी मुझे कि मतलब मैंने अपना थॉट प्रोसेस आई थिंक बदला। छोटा किस हिसाब से? क्या मुझे अपना काम नहीं आता जो मैं छोटा महसूस करूं? बखूबी आता है, बहुत अच्छे से आता है, और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। उनको उनका काम आता है उनके हिसाब से, मुझे मेरा काम आता है। दैट वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर आई फील यू वुड थिंक कि वो छोटी फीलिंग अगेन with that time with the identity which was अच्छा वर्क एंड एक्टर। तो उस वक्त ऐसा फील होता था यार ये तो मेरे से कहीं आगे है, और वो जो छोटी फीलिंग की आप बात कर रहे हैं। बट जब आपको आपके काम में सिक्योरिटी आ जाती है, जब आपको आपके इनहेरेंट पर्सनालिटी में सिक्योरिटी आ जाती है, मैं हूँ जो हूँ वो हूँ, जब आपको आपकी सोच क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिलीफ रखते हैं, उसमें जब आप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ओह माय गॉड मैं अब तृप्त हो गई हूँ और मैं बस I am the ultimate. That's not what I mean. I'm very happy personally with the growth that I've had. And I'm happy with the growth that I've had in person because that personal growth without realizing वो मुझे मेरे काम में दिखती है. Right. It's not the other way around. Got it. Because as an actor हमारा जो experience होता है, I think it's very, मैं तो ऐसे उसको समझती हूँ, it's very closely related to your personal journey, your experiences, because it is that job. Yeah. It is the job of drawing from your experiences if you've had similar ones, or then trying to understand other people who have had those experiences, isn't it? Yeah. तो जब कभी आप अपने experiences से सीखे हैं, काफ़ी हद तक सीखे हैं, और आपकी चाह सिर्फ learning की है, तो मुझे लगता है वो मन में वो सिक्योरिटी आ जाती है कि आप जो है ना बहुत बढ़िया है। तो अब नहीं पड़ता फर्क। आफ्टर रीचिंग दिस स्टेज नहीं पड़ता फर्क, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद वेयर आई हैव रीच्ड। या इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट, इट्स हाउ आई फील हियर, यू नो। Agreed. And I feel at peace, and I feel at ease, and I feel secure. That's the most important, I That is think. the most important thing to me right now. Absolutely. I'll tell you something very honestly, like I was telling you, right? जो मैं आपको बता रही थी कि you know, after having such an amazing run and so much appreciation and I mean overwhelming response, and the amount of gratitude that I've had for this is, मतलब कलेक्टिवली ऐसा होता है ना, ग्रैटिट्यूड आपके इतने साल का और फिर इस वक्त का जो ग्रैटिट्यूड है वो इक्वल है, भर भर के है, राइट। बट आप अगर मेरे से पूछोगे अभी कि मेरे को इनसिक्योरिटी फील होती है कि अब क्या, जो हम बात कर रहे थे, राइट, एक दिन आया था जब हुई थी सडन, आई डिप्ड, सर यार क्या हो क्या रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज भी मुझे लगता है मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, राइट। मुझे नहीं पता अभी नेक्स्ट सीढ़ी, coming back to your journey, right? I don't know if I can say that or no. Of course. But I think हम बहुत लोग, and it's a very common thing to feel कि you know, अच्छा इसके आगे पहली बात तो स्टेप क्या है वो मत बताओ, सीढ़ी कौन सी है ये बता दो, बिल्कुल। पहले वो लैडर बता दो कौन सी है, कहाँ जाना है, you know, ताकि मैं चलूँ तो सही। हाँ, ताकि उस लैडर तक पहुंचे, फिर लैडर के स्टेप्स का सोचेंगे, राइट। सो आई एम देयर, आई एम प्रिपेयर्ड, मेरे को नहीं पता मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, बट यू आर एट ईज। बट आई एम एट ईज बिकॉज आई एम जस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट, एंड आई एम सेइंग दैट विद ऑल ह्यूमिलिटी, आई एम जस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। एब्सोल्युटली। वो एक ही चीज है जो मेरे हाथ में और मेरे कंट्रोल में है। इस इंडस्ट्री में और कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में है वो वही है, और मैं उसको ना ऐसे ट्रेजर करके रखना चाहती हूँ। और
ऑन माई लो डे ऑल्सो आई जस्ट रिमाइंडेड माई सेल्फ ऑल दिस कि मैंने सरेंडर किया था पहले और मैं अभी भी सरेंडर करूँगी और अपने आप को पागलों जैसे ना इस चीज़ के साथ अटैच नहीं करने वाली हूँ। और जब मैं कुछ करूँगी ना तो उसमें मैं अपनी जान से भी ज़्यादा डाल दूँगी। द होल आइडिया इज़ दैट। The whole idea is just to be there and anything can move. But that foundation of faith, I'm very, I would say very possessive about that foundation of faith as we speak right now. No, I mean, that's how it should be. That's how, so I think that's super correct. But also, you worked with such amazing people also. I want to understand माधवन, अगर मैं पूछूँ तो वो कैसे है as a person, as an actor. No, as an actor तो हम जानते ही हैं, but off screen उनके साथ एक project करना, मतलब tell me the experience. When I started, it was that daunting personality. Yeah. When I started. And I was working after 2.5 years. Because I got pregnant. I was expecting. I was doing work, but I had slowed down. But my acting job, being decoupled, came after 1.5 years. So I thought I was rusty. Okay. I felt very rusty. You know, आप जब भी लॉन्ग ब्रेक के बाद सेट पे जाते हैं ना तो आपको लगता है आप शायद भूल गए हैं अपना काम करना। वो होता है। But it is like cycling. Yeah. Muscle memory. This is a mental memory. It's a muscle memory. It's a bodily memory to experience what you experience जब आप सेट पे जाते हैं। तो पहले तो ऐसे लगा ये क्या डॉन्टिंग पर्सनैलिटी आ गई है, जैसा लाइक यू सेड ना, यू फील स्मॉल। ऐसा हुआ। फिर पहले सीन में हुई नर्वसनेस मैडी के साथ। मुझे पहला सीन याद है, जिम वाला सीन था, जब मैं ट्रेडमिल पे हूँ और वो ब्लैबर कर रहा है, यू नो, जिम का सीन था। जब वो सीन शुरू हुआ और हमने काफ़ी लंबा टेक किया सीन का, और मुझे लंबे टेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ये लंबे लंबे 1 टेक्स, आई एम अ बिग फैन। आई फील वो सुर जिस तरीके से ऊपर नीचे जाता है ना, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी, वो मुझे बहुत पसंद है। जब वो सीन हुआ और मुझे अंदर अच्छा लगा वो सीन करके, आई बिकेम एट ईज। सब वो छोटा लगना, छोटा महसूस होना, डॉन्टिंग पर्सनैलिटी, सब नॉर्मलाइज हो गया। ये सेम चीज़ मैंने अपने आप को साइक किया था नवाज़ के साथ शूट करने से पहले फॉर सेक्रेड गेम्स। ओ मैन, नवाज़ के साथ मतलब शूट करना, मैंने कहा पहली बात तो ना नवाज़ को नवाज़ कर दो अपने दिमाग में, है ना, राइट, वो हटा दो दिमाग से, क्योंकि जब तक आप वो सोचते रहोगे ना तब तक आप सीन में ऑनेस्टी नहीं रह पाओगे, ना आप परफॉर्म कर पाओगे। तो वो डर हटा दो, है ना। नवाज़ आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल एक्टर, हिज एक्सपीरियंस, हिज एजुकेशन, वो सब है, लेकिन वो फ़र्क जो है वो अपने दिमाग से हटाने के लिए मैंने अपने आप को बहुत साइक किया था। मेरे सामने कोई भी एक्टर है, बस ऐसे देखना है मुझे नवाज़ को, ये कोई भी एक्टर है, राइट। बहुत मुश्किल था, बट समहाउ हो गया। तो उसने भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दिया कि you know, the mindset, it's about mindset, it's about what you do, because you can't keep thinking about वो एक्टर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि मैं ये लाइंस कैसे डिलीवर कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ या बोल रही हूँ। तो उस इक्वेशन को सबसे पहले आपको माइनस करना पड़ता है, एज दो आप रिहर्स कर रहे हो दीवार के सामने, राइट। But having said that, after that, Maddie and my camaraderie, such a prolific personality, such a great personality he is. Yeah, he's so well read, he's so well educated, impressive personality, so well spoken, so true to his craft. Yeah. Great at inputs, great at understanding, great collaborator. Wow. Great collaborator, even though to him, मैं कौन होती हूँ सजेशन देने वाली, राइट? और मुझे भी इनिशियली वही फीलिंग थी, बट आई थिंक द वे ही रिस्पॉन्डेड जब मैं कुछ उसको बोलती थी, हाँ बोलना, वो आपको और कॉन्फिडेंस देता है, राइट? और वो भी देन ही वुड ऑल्सो काइंड ऑफ बट इन टू काइंड ऑफ सपोर्ट द कॉज, कि यार ऐसा करते हैं ना, करेक्ट बात है, ऐसा करते हैं। Absolutely. You know, so when you get that kind of support from somebody like Madhavan, you feel, हाँ यार, you are doing something right, ना? Yeah.
नो योर आई थिंक आप दोनों की जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी थी वो इंटरव्यूज के दौरान काफी हमको दिखती थी. वो मतलब रियली जेल्ड. we've really gelled and it just became equals वाली बात हो गई थी. You know, even though not that way, but it became about two equals as actors who are really just putting in the hard yards on set and working really hard and really enjoying the process. I feel one more person who is lovely to work with. मतलब मैं तो इंटरव्यूज में भी इतनी एक्साइट हो जाती हूँ जब उनके साथ होता है, पंकज सर. आई थिंक अलग सेम चाबी चलाई थी मैंने पंकज सर के साथ भी. कि ये पंकज त्रिपाठी नहीं, ये पंकज त्रिपाठी नहीं है. हाँ, बट how is he as a person, as a co-actor, as a just a friend on set? The most incredible co-actor that any actor can ask for. Why do you say that? Okay, so he comes with no baggage on set. कोई फ्रिल्स और कोई अननेसेसरी ना एक्सेस बैगेज नहीं आता है उनके साथ. जितना उन्होंने खुद को अलाउ किया है ना 30 किलो, वही आता है. नंबर 2, उनकी अप्रोच में कभी आपको ये नहीं लगता कि उनको आपसे ज़्यादा आता है. नंबर 3, वो जिस तरीके से आपको सजेशन दे जाएंगे वो आपको छोटा नहीं महसूस कराए होगा. आपको ये नहीं लगेगा कि ये पंकज त्रिपाठी ने मुझे करेक्ट किया है. यू नो व्हाट इज दैट टर्म, सुम्मे, you know, just sneaks in sumdi में something like that, ना. So he basically just sneaks in a suggestion which you will inherently just pick up and it makes you think. After thinking, you eventually actually decide to go ahead with that suggestion, and when you actually take what he's given you, he doesn't ever say कि देखा बहुत बढ़िया हो गया, ये तुमने ऐड कर दिया है इसको, तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया. कुछ नहीं होगा ऐसा. वो आपकी ओनरशिप है उसकी. अगर आपने लिया तो भी, अगर आपने नहीं लिया तो भी, वो नहीं दिखाते हैं कि ये मेरा सजेशन था आपको. Forget that. When I'm doing scenes, and I had 3-4 major scenes with Pankaj ji. In Criminal. Very intense and very taxing. I remember when we met at the success party, you know what I told him? I said, I have to tell you something. I want to say thank you to you. I want to say thank you to you. It would be so easy कि आप ये समझें कि ये इसमें मेरे डायलॉग नहीं हैं, सिर्फ इन्हीं के डायलॉग हैं, तो मैं इस सीन को आराम से मतलब कैजुअली कर लेता हूँ, मेरे डायलॉग नहीं है. लेकिन उनकी आंखें ना उतनी ही इन्वेस्टेड हैं उस सीन में, और वो उतने ही इन्वेस्टेड हैं उस सीन में जितने वो खुद के डायलॉग वाले सीन में इन्वेस्टेड होंगे. उसमें एक आयोटा का भी फ़र्क नहीं है. Got it. And then he told me such a beautiful thing. He's like, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ ना तो मैं देख लेता हूँ हर सीन मेरा नहीं है जिसमें मैं हूँ. तो जब ये सीन वो जो एग्जाम्पल दे रहे थे मुझे, मैंने पढ़ा, मुझे पता था ये आपका सीन है. तो उन्होंने वो साइलेंस में जो मुझे उस सीन में दिया, it played such a huge part in me performing that way. सो गिव एंड टेक सिर्फ वर्ड से नहीं होता. गिव एंड टेक आपके सीन में आपके प्रेजेंस से होता है, आपकी साइलेंस से होता है, और सिर्फ आपकी आंखों से भी होता है. और पंकज जी के साथ मेरे एक्सपीरियंस में वो सीन भी नहीं छोड़ते. वो उसमें भी अपना 100% ही रखते हैं. उनके लिए वो कैजुअल बात नहीं है कि ये सीन सामने वाले एक्टर का है. तो वो जेनरस के भी बाप है. A hallmark, a mark of a true artist who's not trying to grab, who's trying to give. This is yours, go take it. How nice. So I'm a fan of his, not just because of the magic that he creates on screen, but just these little things, you know, they just steal your heart away. 100%. And you know? I get that energy. वो जो मैं इंटरव्यू करती हूँ उसमें ही, तो आई कांट इमेजिन व्हाट इट्स लाइक टू एक्चुअली
spend time with him Yeah. on a set, it Yeah. must be 10x more, Yeah, obviously. absolutely. But besides these, are there any more people who you feel like have left an impact on you in the industry? तो वो कौन होगा? बहुत मुश्किल है यार ऐसे. So impact work-wise, you're saying? No, just like as people, आपको बहुत अच्छा लगा हो उनके साथ काम राणा. करके. जिसने पूछा आई थी राणा. Such a fabulous guy he is. Yeah. Such an amazing. मुझे आपकी केमिस्ट्री भी उनके साथ इतनी ज़्यादा पसंद है. हम दोनों यही बात करते हैं, पता है. Rana's wife Mihika was also there a couple of times at parties. और हमको ना ऐसे parallel worlds की feeling आ जाती है suddenly, क्योंकि ये भी वैसे ही लगता है. हाँ. You know, what we are doing as Rana and Naina on screen has most of the times felt like that. And yeah, he's such an amazing guy. Yeah. He's a very dear friend now. Is he very introverted? No. क्योंकि बहुत कम बोलते हैं. वो कम बोलता है, but he's such a sharp mind. He's got such an amazing business acumen. He thinks differently. He's somebody who's so innovative with his thoughts and what he does with them. I commend him for that. And he's somebody जो बिल्कुल ही बिंदास है. वो राणा है, वो राणा डगुपति है, ये आपको महसूस ही नहीं हो सकता. Wow. कभी भी at any stage. मुझे तो कभी नहीं हुआ. Wow. So down to earth, so humble, sensitive, so sensitive. Really? So sensitive really sensitive as a human. I wouldn't expect that. Yeah, out of you a know tall that. man and Yeah. Like him. He's what an attractive quality to have. what an attractive. I mean, sensitive in the sense that ऐसा नहीं है. He's not into. He's not very expressive. हाँ. It's for people to understand. And पता नहीं क्यों हमारी दोनों की ना as friends हमारी tuning ऐसी इतनी amazing हो गई ना set पे कि मैं तो हमेशा उसको बोलती हूँ यार you're so. मुझे ऐसा लगता है वो बहुत thoughtful है, लेकिन वो believe नहीं करता कि वो बहुत thoughtful है. मुझे ऐसा लगता है शायद वो खुद को नहीं उसको समझ में आ रहा, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि he is really thoughtful. He's very amazing. You know, so dear to me. But there's this one interesting thing, जैसे आपने कहा है कि साउथ में जब आप ट्राई करने गए थे, you faced so much casting couch, lost out on opportunities. अब मैं जब आपकी ट्रेजेक्ट्री या जर्नी को देखती हूँ, was maybe you were meant to do the biggest show with the biggest South actor in Rana Naidu. Yeah. And maybe life happened. Yeah, probably. That way I feel like it came full circle. I तब शायद समझ में नहीं आया. I never thought of this, yeah. Because it's true. Yeah. Like imagine at that point you must have felt like I'm probably missing out something in South, but it is, Rana is huge. Yeah, he's huge. He's humongous fan following. People are crazy. In South industry, crazy. And he is one of the biggest stars, and the show is so big, especially down south, and you get to be the leading lady of it. I feel like totally. Life has totally. Another one person who's really left an impact on me is Radhika Apte. Radhika Apte. In very strange ways. Jaise? I used to really admire when I would be on set doing a scene with her during Parched, or generally even otherwise watching her work. I've really admired her as an artist, as an actor. On her her honesty on screen. She's one of the very few artists जिसके लिए मैं बोलूँगी कि मुझे लगता है अगर मैं उससे ये एक nuance ले सकूँ, मतलब that's the admiration I have for Radhika. How is she as a person? She's very bindas. बहुत bindas. It's been ages we've not been in touch actually. This reminds me I should actually just ping her. She's now has a child. She's become a mother herself. Yes. Yeah, so we've not really been in touch. She's in the UK and I'm here and just never had the opportunity. But yeah, she's a fabulous actor. She's such a fabulous actor. Such a fabulous actor. मतलब when she's in frame बहुत मुश्किल होता है. मैं खुद it's difficult because I just want to observe her. Yeah. I want to observe her and I want to I've always wanted to. पता नहीं मैं कितना succeed कर चुकी हूँ या नहीं, या मेरे लिए तो journey है, मतलब मैं करती रहूँगी अलग-अलग चीज़ें try. But अगर मैं कुछ भी not what she is doing, but trying to make and create an
true nuances from who I am. You can't pick up a nuance from somebody. You can pick up a concept of nuance from somebody, but you can't pick up the nuance, right? वो तो आपका खुद का है और वो आपका किसी और से अलग होगा in a similar moment or in a similar situation. तो yeah, to always be so particular about the finer, smallest details. True. Is something I really admire about her. What do you think, as abhi at this stage, like you said, you've had a great run, is something, अब क्या लगता है कि क्या करना बाकी है, क्या achieve करना है at this stage? क्या achieve करना है? The world is your stage, यार. There is a whole world to achieve. But what's next? अभी तो फिलहाल तो next project ही नहीं पता है. The good wait is going on, and I will grab the opportunity the moment something really, really worthwhile comes up, because I feel like there is a certain expectation from me that my fans have, which is that a lot of times मैंने अपने comments में पढ़ा कि ये इस शो का या ये इस प्रोजेक्ट का फेस है तो मतलब कुछ बात है. अब ये मैंने नहीं डिसाइड किया. इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई थॉट ऑफ फर्स्ट, बट आई फील रिस्पॉन्सिबल, मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ, दैट इफ दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट माई फैंस, माई लव्ड वंस, पीपल हु हैव गिवन मी सो मच लव आर हैविंग अबाउट मी, देन इट ब्रिंग्स दैट मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स कि जब मैं अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट करूँ तो मैं ऐसा ही कुछ सोच के करूँ जहाँ वो मेरे साथ मुझे देख के ये समझ सके कि इस प्रोजेक्ट में शायद कुछ बात होगी. Right. I want to deliver that. I want to be able to deliver that to my audiences, to my fans, to the industry, to whether it is a film or it is an OTT show, to be able to deliver that and add that value to my project is my ultimate aim and goal. Because there is nothing that gives me the kind of satisfaction that gives me. If I can add that kind of value with being present, with giving my all to a project where people start saying, अच्छा हाँ ये project है ना, इसमें ये है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा compliment है वो. Absolutely. सबसे बड़ा. It means that compliment means the world to me. Whose work आपने अगर recently कोई show देखा है या film देखा है जो आपको बहुत पसंद आया हो, who comes at the top of your head, तो वो कौन होगा? Owen Cooper from Adolescence. Sparsh. How phenomenal was he? How phenomenal was Sparsh? Apart from him, यार, amongst the girls, मुझे सानिया का काम बहुत अच्छा लगा in Mrs. Oh yes. I just saw it on a flight. Okay. And I thought she was brilliant. Yeah. I thought she was so convincing. It's a hard-hitting film. It's a very hard-hitting film. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मुझे लगा हाँ चलो हिंदी फिल्म देखने का मन कर रहा था, बिकॉज नॉर्मली आप इतना हिंदी कंटेंट नहीं देखते हो. वन ऑफ रियली अमेजिंग शो यू विल सी, फॉर एग्जांपल आई वॉच्ड बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड आई थॉट इट वाज मतलब पैसा वसूल कमर्शियल. I know there are a lot of people who think otherwise, but I don't care. I thought Bads of Bollywood, for Aryan to do what he did for his first, incredible. Absolutely. क्या spin-off दिया है, the climax, amazing, and Lakshya was great, Rahul was fantastic. You could actually be a part of season 2. Now you and Netflix are like part of season 2 of Bads of Bollywood in some way. How? You could always like approach. Oh yeah, अच्छा that way That you're way, saying. yeah. Absolutely, why not? Because, yeah. Absolutely, why not? If there is a character. If there is a character. That, If you know, there you is could a- like fit in or 100%. something. I feel like it's a great. What a great idea you've given me, yeah, Aina. Because Netflix really likes you. We've seen so much of you And on Netflix feels like home ground. Yeah, I also Yeah. love working with them. Yeah. I thoroughly enjoy working with them. Matlab, Yeah. the kind of ease and comfort that they give you, at least I'm talking about my personal experience. बहुत मजा आता है मुझे Netflix के साथ काम. So Aryan, if you're watching this, So Aryan, if you're watching this, I loved your show. Kudos to what you've done. Hats off for a first.
love to do Bands of Bollywood. 100%. That would be interesting to That would see. be very interesting. But on that note, we wish you all the very best for you. everything that's coming in the future. I feel like it was a very deep conversation. Very immersive. Very immersive in a way. Very different from the usual conversations I get to you. But so lovely seeing your journey. So inspiring seeing everything we've been through. And so lovely to see the space that you are in. Thank you so much. And thank you for your cinema. We will keep watching you and loving you for the rest of Thank you the for time all we your work. love, Aina, and I think rightly so. It was absolutely worth the wait. Yeah. I don't know why you feel like such a sweet girl. Like, it was so amazing talking to you and Thank chatting you. with you. You feel, is a compliment I want to give you. You have this innate knack and ability of feeling like you belong to the person. How sweet. That's such a sweet compliment. No, but I mean it. I've always felt like that for you. You feel like you make the other person feel like Aina belongs to you. Aap dil khol ke baat kar lo. That is so nice. Yeah, but really, please keep it up, and I will promise that whatever I do, I will try to keep delivering. Thank you so much. We see you super soon. Guys, I'm Surveen Chawla. Like, share, and subscribe to none other than Instant Bollywood.